My dear students, last class in PRC1, we started the writing process. I hope you remember the last lecture. And in writing process, some equations, some formulas I had given you, you might remember. That writing process comprising 3 steps: PDR, preparation, drafting, and review. The second important thing that we discussed, that was preparatory steps of writing, PSW, that was PAC, right? Preparatory steps of writing comprising 3 steps. Again, number 1, the purpose; number 2, audience; number 3, contents. What do I mean here? मेरा मतलब क्या है यहाँ पर? What I mean to say, basically, पहले मैंने आपसे कहा writing process के अंदर 3 steps हैं: preparation, drafting and review. उसके अंदर से फिर मैंने पहला step लिया है preparation, और preparation के लिए मैंने आपसे कहा कि preparatory steps जो हैं इसके भी 3 steps हैं. नंबर 1 हमें देखना होता है कि हमारा purpose क्या है, हमारे audience कौन है, रीडर्स या लिसनर्स कौन है. नंबर 3, हमें उनके मुताबिक कंटेंट्स क्या लिखने होंगे, उन्हें लिखना क्या होगा. Then the third one we had discussed IGT, and that was idea generation techniques. Idea generation techniques, and those were BMFA. There were 4 techniques we discussed. Number 1 was the idea generation techniques. Number 1 was brainstorming. The second was mind mapping. The third was fishbone. And the 4th one is affinity diagram that we'll discuss in this chapter later on. And then we discuss the information sources. What are the different information sources that we use in writing? Those information sources we studied, there were 4 information sources. Number 1 was the primary source. The second was secondary source. The third was the formal information sources. And the 4th one was informal information sources. Yes, great. All right. So I have seen your even working or your answers on the screen in the chat box, that whatever I was discussing, you were giving me feedback same time, and that shows your active participation in the class. That's a wonderful thing, and I really appreciate to all of those who take interest and actively participate and give feedback during the lecture. That's a great thing. That's a great. And you might remember that we had discussed this model, this diagram, the writing process comprising these 3 steps: planning, drafting, and reviewing. And then the first step of planning, we started. Here we have the planning, the first step of writing. In the writing process, the first step is planning. So under the planning, you might remember we had discussed about the PRCM matrix. PRCM matrix. So whenever we prepare for the writing, we have a matrix in our mind that is called PRCM. P for purpose, R for recipient or audience, C for contents, and M for medium, right? So that's we have already done. So under the PRCM matrix, the first part, purpose, objective or aim, we have completed in the previous class, you might remember. So we proceed further now. Purpose have been discussed in detail.
that whenever you write, there must be some purpose, there must be some objective or aim. Without purpose or objective or aim, as we people don't talk even each other, so similarly, we don't write letter, memos, reports when we don't have any purpose. So whenever you write any letter, memo or report to anybody, so there is a purpose behind, और उस purpose या objective या aim की वजह से ही आप हाथ में कलम उठाते हैं या आप कोई टेक्स्ट टाइप करना शुरू करते हैं, कोई आप एप्लीकेशन पे, कोई वेब पे, कोई ईमेल पे, कोई लैपटॉप पे, कोई डेस्कटॉप पे, कोई मोबाइल पे. सो दिस इज व्हाट, ये बेसिकली कोई पर्पस है तो आपने टाइपिंग करनी शुरू की या आपने टेक्सटिंग करनी शुरू की. इफ देयर इज नो पर्पस, आप नहीं लिखेंगे कुछ भी, राइट? सो always whenever you communicate anybody, either you speak or write, there must be a purpose behind. Okay, so we had discussed in detail and we took the example of this chocolate bar, that when you see the advertisement of chocolate bar on the media, on the television, so how come you target your primary purpose and your secondary purpose, or the primary objective or the secondary objective of that communication or advertisement? So my dear students, here I have summed up the previous lecture. Here I have summed up the previous lecture. यहाँ हमने अपना previous lecture को sum up किया. राइट, अब चलते हैं हम आगे और नेक्स्ट हमारा PRCM का जो मैट्रिक्स है प्लानिंग के फेज के अंदर, यानी जो पहला राइटिंग का स्टेप है वो है प्लानिंग. और प्लानिंग के अंदर हमारे पास प्लानिंग कंप्राइजिंग फोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, और वो 4 एलिमेंट्स जिस मैट्रिक्स के अंदर है वो है पर्पस, P फॉर पर्पस, R फॉर रेसिपिएंट्स यानी ऑडियंस, एंड C फॉर कंटेंट्स, एंड M फॉर मीडियम. सो अब हम पहुंच गए हैं सेकंड के ऊपर, दैट इज ऑडियंस. My dear students, audience means the recipient of the message, the person who will receive the message. For example, right now you are recipient of my message. I'm delivering my lecture to you. I'm sending my message to you. My wording, my lecture is basically from my side. I'm the sender of the message, and you are receiver of the message, so you are my audience. हर वो शख्स जो मैसेज को रिसीव करता है, चाहे वो लिखा हुआ मैसेज रीड करे या वो बोला हुआ मैसेज सुने, so that listening and reading is basically at the part of recipient of the message. Right now I'm conveying my lecture, मैं अपना lecture convey कर रहा हूं, मैं deliver कर रहा हूं. So this is, what does this mean? That I am the sender of the message and you are the receiver of the message. So receivers are audience. Receivers are audience. All right. So you are my audience right now. इसी तरह से ये book मैंने लिखी
तो इस बुक को आप लोग रीड कर रहे हैं, तो आप इस मैसेज के, इस बुक के रीडर है, यानी रेसिपेंट हैं, राइट? सो ऑडियंस मीन्स target recipient of the message. All right, I hope recipient is clear now. My dear students, according to the audience हम मैसेज को स्ट्रक्चर करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस हम लैंग्वेज का इंतखाब करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस हमारे बोले जाने वाले, लिखे जाने वाले अल्फाज होते हैं, यानी कंटेंट्स होते हैं। You got my words? What I mean to say? मैं क्या कहना चाहता हूं? देखें, आप जिससे भी बात करते हैं अपने मैसेज को स्ट्रक्चर करते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है तो उसके मुताबिक आप स्ट्रक्चर करते हैं मैसेज को। कोई कम पढ़ा लिखा है, आप उसके मुताबिक स्ट्रक्चर करते हैं अपने मैसेज को। किसी के पास उस सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आप स्ट्रक्चर मुख्तलिफ तरीके से करते हैं अपने मैसेज को। किसी के पास उस सब्जेक्ट की, टॉपिक की नॉलेज नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर किसी और तरीके से होता है उस मैसेज का। क्यों? इसलिए कि आपका मकसद है अपने ऑडियंस को समझा देना, ताकि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने ऑडियंस के मुताबिक स्ट्रक्चर करते हैं अपने मैसेज को, और हम अपने ऑडियंस के मुताबिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे सामने अगर मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं तो आई कैन डिलीवर माय लेक्चर इन उर्दू और इंग्लिश, बट इफ आई हैव प्योरली फॉरेन स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग जद्दा या रियाज या जो हम सीए की क्लासेस के लिए लेते थे पहले, तो हमारे पास इंटरनेशनल ऑडियंस थे, सारे अरब्स थे और पाकिस्तानी जो वहां रहते हैं। सो वी यूज्ड टू डिलीवर टोटली इन इंग्लिश, राइट? So, or even in Pakistan, there are so many institutions like IBA or CBM, like we deliver our lectures in English. The reason, the class, the audience level is different. Their demand is to deliver lectures in English. The reason, they are from A levels, O levels, they are like from top-notch class, top education class. So that is why they usually they understand Urdu, but they can't understand the terminologies of the particular subject in Urdu. So similarly, the use of language, the selection of language is according to the audience, right? See, whenever you go abroad, if you go in America, USA, definitely you will talk language. After some time, you would be able to communicate like wanna, gonna, hasn't, haven't, don't, didn't, right? You use all like contracted language that Americans used. They make like one word of two words. They use contracted language. Want to, wanna, going to, gonna, has not, hasn't, don't, do not, don't, did not, didn't, or now didn't even, must not, mustn't. So this is what, that's the way how they speak in America. But when you go England, UK, so you speak like the native speakers. आप वहां पे बिल्कुल यूके जो होम ऑफ इंग्लिश है उनके मुताबिक बात करेंगे। वहां पे wanna, gonna, hasn't, haven't, don't, didn't नहीं चलता है। When you go Australia, they have a different style. When you go in South Africa, they have a different English speaking style. So these are the four common English speaking style being spoken, the language being spoken in the world. ये चार स्टाइल बहुत कॉमन है दुनिया के अंदर। सबसे ज्यादा अब अमेरिकन चल रही है, then Britain, UK, and then number 3 Australian, and number 4 South African. इनका प्रोनाउंसिएशन और इनका एक्सेंट अपना अपना है, अपना अपना स्टाइल है। सिमिलरली अरबिक की एग्जांपल दी है आलियान ने, तो अरबिक बेसिकली सऊदी अरेबियन अरबिक, कतर की अरबिक, इराक की अरबिक, यूएई की अरबिक, इन सब में वैसे ही थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। जैसे कि हम लोग उर्दू बोलते हैं कि इंडिया में भी उर्दू बोली जाती है, इंडिया के डिफरेंट शहरों में। यू माइट हैव सीन द वीडियोस। बॉम्बे की उर्दू आप देख लीजिए किस तरह से है, न्यू दिल्ली की उर्दू किस तरह से है, आगरा और
लखनऊ की लैंग्वेज आदाब और तस्लीमात से भरपूर, तशरीफ रखिए, आइए प्लीज, मतलब बहुत आदाब के साथ बात करते हैं। सिमिलरली कराची की उर्दू देख लीजिए आप, कराची में जो उर्दू बोली जाती है बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही लाइक जबरदस्त तरीके से बोली जाती है, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं। लेकिन इसी के डाउनटाउन में चले जाइए आप, नाडी, कुरंगी, औरंगी, मलिर, राइट, या हैदराबाद की तरफ चले जाइए तो आपको बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल मिलेंगे। इसी तरह से आप अगर क्वेटा की तरफ चले जाइए तो उर्दू आपको बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेगी। आपको अगर इसी तरह से अगर आप पंजाब के डिफरेंट शहरों में उर्दू में बात करेंगे तो आपको डिफरेंट मिलेगी। और अगर आप कहीं पेशावर चले गए तो फिर रक्षा आती है, बस जाता है, मीन्स कि आपको वहां पे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल मिलेगा उर्दू का। सो दिस इज व्हाट दिस मीन्स कि हमें डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट मिलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके लेवल पे जाके उसकी लैंग्वेज बोलनी चाहिए, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, राइट। सो इसी तरह से हम जो लिखते हैं, ये सारे के सारे जो लैंग्वेजेस जो लिखते भी हैं हम, जब तो हमें वी हैव टू यूज द लैंग्वेज, वी हैव टू सेलेक्ट द वर्ड्स दैट इज बीइंग कॉमन इन आवर सोसाइटी एंड स्पोकन लाइक इन योर सोसाइटी। आपको वही लफ्ज बोलने और लिखने चाहिए जो आपकी सोसाइटी में कॉमन हो। द रीजन, द लैंग्वेज दैट इज बीइंग स्पोकन इन योर सोसाइटी, the language, the wording that is, those are common in a society, that can be easily understandable for a common man, right? That is easily understandable for a common man. So audience को देख के, अपने listener को, अपने रीडर को देख के आपको सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स करना होता है, सिलेक्शन ऑफ टर्मिनोलॉजीज करनी होती हैं। हियर I am a faculty member. Right now, I'm delivering my lectures as a teacher, as a lecturer. I'm delivering my lecture. So here I have to take care that the wording, the language I should use, that must be appropriate according to your level, according to your understandability. Because here I have a proper flower vase. मेरे सामने एक गुलदस्ता है पूरा, मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ फूल इस गुलदस्ते में सजे हुए हैं। सो इन सब के लेवल को मुझे समझना होगा और उसके मुताबिक मुझे फिर अपने लेक्चर को ट्रांसफॉर्म करना होगा ताकि मेरा ऑडियंस मुझे अंडरस्टैंड कर सके, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। Right now, concentrate on the lecture, please, and no texting. All right? No texting, no person texting right now. Just concentrate towards the lecture. And also, please mute your mic. I would request you all. Please mute your mic. Okay. So, my dear students, if you concentrate towards the lecture, this lecture become easier. You will understand each and everything during the class, and just you need to revise once and you will be prepared for the examination. So that is why I would request you and suggest you to please concentrate properly into the lecture, right? My dear students, we have to take care about the language of the audience, and the next is the contents of written communication. The message that you communicate, जो पैगाम आप communicate कर रहे हैं, the message you communicate is basically the content of the message. That is content. वो जो मैसेज आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो कंटेंट्स हैं आपके मैसेज के। आपका मैसेज उन कंटेंट्स पे मुश्तमिल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जो इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ, तो मेरे जो बोले जाने वाले अल्फाज हैं, ये मेरे कंटेंट्स हैं। Okay, Danish, I'll discuss each and everything, the type of the paper, the style of the paper, and even about the model paper. I'll discuss each and everything later on. All right? Okay. So right now, basically, I'm focusing towards my lecture. So audience के बारे में मैंने बताया कि audience PRCM matrix का second important element है, means recipient.
और जब भी हम अपने रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज या ऑडियंस को मैसेज देते हैं लिख के या बोल के, हम अपने मैसेज को, हम अपनी जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो हमारे मैसेज है, उसको स्ट्रक्चर किस तरह से करना है, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, ये ऑडियंस के ऊपर बेस करता है कि वो ऑडियंस कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, वो लिखा पढ़ा है या उसके पास सब्जेक्ट की नॉलेज है कि नहीं। मुझे अपने लैंग्वेज को, अपने मैसेज को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहिए, पहले क्या चीज बताऊं, फिर क्या बताऊं और फिर क्या बताऊं, मैं कैसे स्ट्रक्चर करूं उसको, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मेरे मैसेज में कंटेंट्स क्या होने चाहिए, ये सब चीजें ऑडियंस बात करने से पहले प्लान कर लेता है। तभी तो हमने प्लानिंग में डाला है इसको। यू गॉट इट? My dear students, communication is a two-way process, right? Communication is a two-way process of sending and receiving the message. जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं ये टू वे प्रोसेस है, वन वे टिकट नहीं है, ये वन साइडेड नहीं होता कि एक आदमी बात कर रहा है दूसरा सुनने वाला कोई नहीं है, या सुनने वाला मौजूद है और बोलने वाला कोई नहीं है। नो, देयर इज अ टू वे प्रोसेस। सो ऑलवेज व्हेन अ सेंडर ऑफ द मैसेज सेंड द मैसेज, उसे पहले प्लान करना होगा, अपने रिसीवर्स का प्रोफाइल देखना होगा कि इसकी लैंग्वेज कौन सी अंडरस्टैंडेबिलिटी है, इसका बैकग्राउंड क्या है, मुझे अपना मैसेज स्ट्रक्चर कैसे करना पड़ेगा, मेरे मैसेज के कंटेंट्स क्या होने चाहिए। ये प्लानिंग के फेज के अंदर अपने ऑडियंस का प्रोफाइल देख के, अपने ऑडियंस, अपने रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज जिससे वो बात कर रहा है, उसके बारे में जान के, उसके बारे में पहचान के, एनालिसिस करके फिर वो अपना मैसेज कम्युनिकेट करता है। You got the point? Okay. My dear students, अब कुछ चीजें और भी हैं जो ऑडियंस को देखनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइज एंड कंपोजिशन। Am I talking one to one? क्या मैं वन पर्सन से बात कर रहा हूं और अ टीम? क्या मेरे सामने वन पर्सन है या पूरी टीम है? If I'm talking to one person, my style of communication will be different. And when I have a group of people, a whole class like you people, so then in that case, my style of communication would be different. All right? So similarly, when I deliver my lecture in front of few students, so my style would be different. Right? And when I deliver my lecture in auditorium, or in seminar halls in front of hundreds of people, so then my style will be different. The reason, as per the situation, the speaker has to mold himself. Speaker को, बोलने वाले को, according to the situation, अपने आप को adjust करना होता है कि मेरे सामने किस तरह के ऑडियंस हैं, कितने हैं, मैं वन टू वन बात कर रहा हूं, या पूरी टीम से कर रहा हूं, या पूरे क्राउड से कर रहा हूं। And even sometimes you have to see the composition कि जिससे मैं बात कर रहा हूं वो लोकल पाकिस्तानीज हैं, कराचीइट्स हैं, या पूरे मुल्क के डिफरेंट सूबों से हैं, या वो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, या वो इंटरनेशनल लिसनर्स हैं। मेरा ऑडियंस कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंटरनेशनल हो, राइट? Because when we conduct different conferences, when we conduct different seminars, workshops, especially when we have the international symposiums, international conferences in our universities here at Karachi, so we have international audience. In that case, हमारे सामने international audience होते हैं different countries से, international conferences के अंदर जो HEC हायर एजुकेशन कमीशन के फ्लैग के नीचे different universities में हो रही होती हैं, या वो गवर्नमेंट के साए तले हो रही होती हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे सामने डिफरेंट कंट्रीज के ऑडियंस होते हैं। हमें ऐसी कंडीशन के अंदर फिर अपने आप को अगेन एडजस्ट करना होता है, मोल्ड करना होता है उस इंटरनेशनल ऑडियंस के मुताबिक। So my dear students, ये जो कंपोजिशन ऑफ द ऑडियंस है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना होता है कि मेरा कस्टमर
आपने किसी से लेटर, मेमो, रिपोर्ट लिखनी है, आपने कोई प्रोडक्ट अपनी इंट्रोड्यूस करनी है, या किसी इंटरनेशनल आपके कस्टमर ने आपको, जर्मन कस्टमर ने या चाइनीज कस्टमर ने आपको कोई ऑर्डर भेजा है और आपने वो फुलफिल करना है, या आपसे कुछ पूछी है या आपने उनसे पूछी है, वो जवाब दे रहे हैं, तो हम फिर दूसरे कल्चर्स को देख के, अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स का लेवल देख के, अपने ऑडियंस का लेवल देख के हम बात करते हैं फिर, राइट, कि हमें क्या कहना है और किस तरह से कहना है. So that's mean what? That's mean that whenever we convey any message to the audience, हमें अपने ऑडियंस का प्रोफाइल देखना होता है. इसके अलावा वो एक पर्सन से हम बात कर रहे हैं, सिंगल पर्सन से, तो हमारा स्टाइल डिफरेंट होगा. हम किसी एक टीम से बात कर रहे हैं तो हमारा स्टाइल डिफरेंट होगा. और कोई अगर हमारे सामने पूरा क्राउड है, क्राउड की सूरत में बात कर रहे हैं, तो हमारा स्टाइल डिफरेंट होगा. इसी तरह से सिंपली एक अंदाजा लगा लीजिए कि अगर मेरे सामने 1 से 2 ऑडियंस बैठे हुए होंगे तो मेरा मैसेज, मेरा लेक्चर के स्टाइल डिफरेंट होगा, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल करीब सामने बैठे हुए हैं. लेकिन बट इफ दे आर लाइक यू पीपल, यू आर सिटिंग एट योर होम एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, मुख्तलिफ शहरों में आप लोग बैठे हुए हैं, तो इस सूरत में मेरे पास ऑलमोस्ट 40-50 जब मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं, तो मुझे अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपने ऑडियंस के मुताबिक, राइट. सो हमें अपने ऑडियंस के, जब भी हम ऑडियंस को कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, अपने रेसिपेंट को, अपने ऑडियंस को, तो हमें स्ट्रक्चर करना पड़ता है. मैसेज को स्ट्रक्चर कैसे करना है, लैंग्वेज क्या होगी और कंटेंट्स क्या होंगे. नंबर 2, हमें साइज एंड कंपोजिशन देखना होगा कि हम 1-to-1 कर रहे हैं मैसेज कम्युनिकेट किसी मीटिंग के अंदर, किसी इंटरव्यू के अंदर, या मैं लेक्चर दे रहा हूं या प्रेजेंटेशन दे रहा हूं पूरी टीम को. तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें अपने मैसेज को कंपोज करना होगा या डिलीवर करना होगा. नंबर 2, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. My dear students, different people have different understanding level. Different people have different level of understanding. Even अगर आप लोग मेरे सामने, if you people are understanding my lecture, मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से भी मुख्तलिफ लोगों का लेवल डिफरेंट होगा. इसीलिए व्हाट आई एम डूइंग, मैं आई अज्यूम कि मेरे सामने जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत शानदार लेवल के टॉप क्लास स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन कहीं मैं सोचूंगा कि इनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि दरमियानी लेवल के होंगे, मीडियोकर होंगे, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आ तो गए हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. राइट. सो दिस इज व्हाट, हमने इस तीनों तरह के लेवल को अपने जहन में रखकर हमने स्टार्ट किया अपना लेक्चर, ताकि हम देख सकें कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं और किस किस लेवल पे लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग राइटर के लिए और स्पीकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसको ये देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए प्लानिंग के दौरान ही कि मेरा ऑडियंस जो है उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है, उसने कितना पढ़ा लिखा है, कितने उस फील्ड का एक्सपीरियंस है, कितनी नॉलेज है. ये सब चीजें उसको देखनी चाहिए और उसके मुताबिक फिर अपने ऑडियंस से, अपने रेसिपिएंट ऑफ मैसेज से बात करनी चाहिए. राइट. Now we move towards expectations and response. ऑडियंस का प्रोफाइल जब आप देख रहे हो, जब अपने ऑडियंस के बारे में अंदाजा लगा रहे हो, अपने लिसनर, रिसीवर ऑफ द मैसेज के बारे में अंदाजा लगा रहे हो, तो वहां पे आपको डिटेल अपने ऑडियंस के बारे में, क्योंकि जो मैसेज आप जनरेट करेंगे वो किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे. जैसे यहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदें क्या हैं कि जो हमें पढ़ाया जाए हमारी समझ में आए. इस एक्सपेक्टेशन को हम मद्देनजर रख के अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं कि वी वुड लाइक टू डिलीवर आवर लेक्चर इन लाइक सच अ वे सो दैट एवरी पार्टिसिपेंट कैन अंडरस्टैंड, कि हमारे जो लोग भी हैं वो हमारे लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकें. राइट. ओके. अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं यहाँ फिर रिपीट करता चलूंगा कि आई एम ट्राइंग टू डिलीवर माय लेक्चर इन उर्दू एज वेल साथ साथ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्राई टू अकोमोडेट योरसेल्फ, ट्राई टू एडजस्ट योरसेल्फ विद द इंग्लिश लेक्चर, बिकॉज द सब्जेक्ट इज इन इंग्लिश, और आगे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो तमाम इंग्लिश में होंगे. और ये लेक्चर्स जो हम आपको दे रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करें. इसके बाद आपको एग्जाम जो देना है वो भी इंग्लिश में होगा.
और ये सब्जेक्ट तो बेसिकली बिलोंग ही आपके लैंग्वेज से करता है, राइट? राइट, नहीं 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 नहीं, अभी आपको उसके नोट्स नहीं बनाने हैं कासिम, यू डोंट वरी अबाउट, जस्ट लिसन द लेक्चर, अंडरस्टैंड द लेक्चर, इसको रीड करें प्रॉपरली, एक एक चीज को समझें। इसके बाद जब हम व्हेन वी रीच एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या पढ़ा, कैसा पढ़ा, और इस चैप्टर में से हमने क्वेश्चंस कैसे करने हैं। उसमें एमसीक्यूज भी शामिल हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी शामिल हैं, उसमें कुछ डायग्राम्स भी शामिल हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो आप बिल्कुल परेशान ना हो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, राइट? आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो जस्ट ये स्टार्ट हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट टू लिसन द लेक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सिर्फ आप क्या करें, इसको सुने और गौर से समझने की कोशिश करें, राइट? तो फिर क्या होगा, आपको फिर ये जब उस चैप्टर के एंड पे पहुंचेंगे तो फिर देखिएगा आप आराम से इस चैप्टर को क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और वही हमारा पैटर्न है एग्जामिनेशन का, राइट? सो पैटर्न ऑफ द पेपर यहां डिस्कस करने के बजाय हम डिस्कस करेंगे उस जगह पे जहां आप कुछ चीजें पढ़ के समझ चुके होंगे, इसलिए आप वहां पे आराम से कर रहे होंगे। हमें इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलराइट? इज दिस ओके? आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, आपको सिर्फ हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बुक के अंदर, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, वरना बुक के अंदर ही अंडरलाइन करते जाएं, हाईलाइट करते जाएं, उसको पढ़ते जाएं। ये कोई ऐसे नोट्स नहीं है इसके अंदर कि आपको नोट्स एग्जाम के अंदर पूरे पूरे लिखने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपसे पूछेंगे कि जी एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्स ऑफ द रीडर क्या होता है, ऐसे नहीं है। बल्कि हम लास्ट में जाके इसके एमसीक्यूज करेंगे और इसके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बताएंगे कि कैसे करने हैं। So you don't worry about, we'll discuss in detail at the end of the chapter. वहां जाके आपको समझाएंगे कि जनाब क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम के अंदर और कैसे आते हैं, alright? ओके, बुक हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है ग्रुप के ऊपर, बुक आपकी अपलोड हो चुकी है, दोस्तों तक पहुंच चुकी है सब तक, और जिनके पास नहीं है वो एक दूसरे दोस्त उनको सेंड कर दें ग्रुप के ऊपर, राइट? तो बुक इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द ग्रुप, राइट? और आप उसके ऊपर आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, उस बुक का प्रिंट करवा लें, इस बुक को आप प्रिंट करवा लें, और अगर आपको आदत है हार्ड कॉपी के अंदर पढ़ने की तो हार्ड कॉपी के अंदर हाईलाइट कर लिया करें, ठीक? और अगर आपको सॉफ्ट कॉपी से काम चल सकता है तो आप सॉफ्ट कॉपी से के ऊपर कर लें। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप हार्ड कॉपी को प्रिंट करवा लें, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी प्रिंट करवा लें। देयर आर लाइक आई थिंक टोटल 272 और 3 और 4 लाइक 272-73 पेजेस हैं, और उसके अंदर आप हाईलाइटर यूज कर सकते हैं, आई थिंक अगर आपकी आदत बुक से पढ़ने की है तो, राइट? नोट्स के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं अभी आपसे कि ये कोई इस तरह का नहीं है जैसे मैट्रिक इंटर तक हमें नोट्स बनाने होते हैं, नो, हमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, राइट? हमें इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम इन लाइनों में से एमसीक्यूज बनाएंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, राइट? सो जब हम व्हेन वी रीच एट द एंड ऑफ द चैप्टर तब मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा कि क्या करना है, और मैं बल्कि एक काम करता हूं आज की क्लास के एंड के अंदर, इस चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लूंगा, ताकि आप में से उन लोगों के जहनों में जो सिर्फ और सिर्फ बार बार क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं, एग्जाम पे पहुंच रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सकूं। द रीजन के अभी स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट में कुछ बेस बनानी है, बेस बन जाएगी तो उसकी बेसिस पे आपको मॉडल पेपर समझ में आएगा। अगर हम मॉडल पेपर को शुरू में डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि वो जो चीजें हैं वो आपको मुश्किल लगे या समझ में ना आए, इसलिए हम पहले वो बेस फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी फाउंडेशन बन जाए, उसके बाद आपको फिर इसके जो पेपर का स्टाइल है, जिसका मॉडल पेपर है, वो समझ में आएगा। दैट्स द रीजन बिहाइंड। ये मैं रिपीटेडली अपना लेक्चर में मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि मेरे ये स्टूडेंट समझ गए होंगे और रिपीट नहीं करेंगे इस बात को बार बार, राइट? हम आपको इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इस प्लेटफॉर्म से, सिलानी के प्लेटफॉर्म से इतना सेटिस्फाई हो जाएंगे आप इंशाल्लाह कि आप खुद कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह
good preparation we have done, right? और आपसे पहले हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से पास आउट हो गए हैं, और जो अब PRC के 500 सब्जेक्ट क्वालिफाई करके कैफ के सेकंड मॉड्यूल में सेकंड पार्ट में पहुंच गए हैं। यानी कैफ का भी PRC भी क्लियर हो गया सारे सब्जेक्ट्स, कैफ का फर्स्ट मॉड्यूल भी क्लियर हो गया, कैफ का सेकंड मॉड्यूल में पहुंच गए हैं वो, राइट? सो यू डोंट वरी अबाउट, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। जब ये गुलशन पूरा सजाया है सिलानी ने, SBIL ने आपको इल्म पहुंचाने के लिए आपके डोर स्टेप तक, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ साथ, we are here at every step, we are here with you till the end of your exams. You don't worry about, right? So we'll cooperate you, we'll guide you, we'll teach you, inshallah, and we will advise you for each and everything. We have number of people in management, we have number of people in faculty, they will guide you regarding your all questions, your queries, your every answer of your queries, your question will be given to you, inshallah. You don't worry about, बिल्कुल फिक्र नहीं करें। अभी जस्ट आपका एक ही काम है कि हमारे साथ कुछ फाउंडेशन बनाने में, यानी कि आप ये जो हम आपको लेक्चर दे रहे हैं इसको समझें, इसमें अटेंशन दीजिए इंशाल्लाह। मैं बल्कि आज कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में ही आपको मैं थोड़ा सा लास्ट में इस चैप्टर के एंड में कुछ मैं पैटर्न ऑफ द पेपर चेक कर लूंगा, ताकि आपकी कुछ थोड़ी सी जो जहन में क्वेरीज हैं वो दूर हो जाएं, राइट? बट लेट मी फिनिश दिस टॉपिक फर्स्ट, ऑलराइट? पहले मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करने दीजिए, ऑलराइट? और बिल्कुल परेशान ना हो, कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपके लिए रहेगी नहीं इंशाल्लाह, जिसके लिए आप परेशान हो, ठीक है? ओके, थर्ड पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी ऑडियंस हैव सम रिलेशनशिप। आप अपनी रिलेशनशिप के मुताबिक बात करते हैं लोगों से, आप जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, वो आपकी रिलेशनशिप क्या है उसके मुताबिक बात करते हैं, ऑलराइट? इंशाल्लाह नुमान। ओके, सो सी, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, आपका रिलेशनशिप उनसे बेटों जैसा है, बेटी जैसा है, तो आप उनसे उसी रिलेशनशिप के मुताबिक बात करते हैं। आप टीचर से बात करते हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो आपकी मुझसे रिलेशनशिप स्टूडेंट एंड टीचर वाली है। तो आपके देखें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझसे, आप मुझसे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, सर पेपर कैसा होगा, सर वो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, सर हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। अब देखें, हमारी जैसी रिलेशनशिप है वैसी हमारी बातचीत हो रही है ना। सिमिलरली, जैसी आपकी जिससे रिलेशनशिप है वैसी उससे आपकी बातचीत है। आपके दोस्तों से, क्लोज फ्रेंड से आपकी बातचीत जरा डिफरेंट, जिनसे कभी कभी मिलते हैं उनसे डिफरेंट। कभी आप कैजुअल बात कर रहे हैं, कभी फॉर्मल बात कर रहे हैं, कभी इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस। सो जनाब, आपकी अपने ऑडियंस से, अपने लिसनर से किस तरह की रिलेशनशिप है उसके मुताबिक हम बात करते हैं, राइट? सो ये हम फॉर्मल या इनफॉर्मल होते हैं, ये अपने रिलेशनशिप के मुताबिक होते हैं, ऑलराइट? ओके, द फोर्थ पॉइंट इज वर्क एनवायरनमेंट। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट। अब देखें ना, ऑफिस में चाहे कोई फाइनेंस में काम कर रहा है, कोई ह्यूमन रिसोर्स में काम कर रहा है, कोई HR में काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग में काम कर रहा है, कोई सेल्स में काम कर रहा है, कोई टेक्निकल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई IT में काम कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जितने भी ऑडियंस हैं, ये जितने भी जो हमारे जो लोग हैं काम करने वाले, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, ये अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक बात कर रहे होते हैं। ये अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक जार्गन्स यूज कर रहे होते हैं, टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे अकाउंटिंग के सर जब आपको पढ़ाते हैं तो क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, क्लोजिंग, एडजस्टमेंट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, और एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं वो। क्यों? इसलिए कि आप उनसे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो अब उस वक्त ऑडियंस जो है, और ऑडियंस और टीचर दोनों जो है क्या कर रहे हैं? वो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं लेट्स से QT, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ते हैं, तो फिर उस वक्त सर नहीं और सर कहाँ क्या करते हैं? वो आपको
क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बारे में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, मैथ्स की और स्टैट्स की, वो आपको पढ़ा रहे होते हैं। जार्गन्स मींस टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज। यस यू आर राइट फातिमा साहिब, बिल्कुल एग्जैक्टली। जार्गन्स मींस जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं किसी फील्ड की, वो जार्गन्स कहलाती हैं। ऑलराइट, किसी भी फील्ड की जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो जार्गन्स कहलाती हैं। ऑलराइट, उन्हें जार्गन कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं अपनी फील्ड की टेक्निकल जार्गन्स यूज कर रहा हूं। राइट, मैं अपने सब्जेक्ट की टेक्निकल जार्गन्स यूज कर रहा हूं। इसी तरह से अकाउंटिंग वाले अपनी यूज कर रहे हैं, क्यूटी वाले अपनी यूज कर रहे हैं, इसी तरह से आपके इकोनॉमिक्स वाले अपनी टेक्निक्स अपनी जार्गन्स यूज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी सब्जेक्ट हैज its own jargons, its own terminologies। तो jargons क्या चीज होती है my dear friends? Jargons का मतलब होता है technical terms, technical terminologies। जो उस सब्जेक्ट के अंदर technical terms यूज होती हैं उसे हम jargons कहते हैं। आई होप कि आइंदा के लिए ये एक खास किस्म का वर्ड जब भी यूज होगा आप समझ जाएंगे। आई होप सो दिस इज क्लियर, एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि jargons, what do we mean by jargons? Okay, that's great. That's great. Very nice. Feedback I'm receiving. A quick feedback from your side. That's great. Wonderful. Okay. So, my dear students, working environment के मुताबिक हमारा technical jargons use होता है. Right? वर्किंग एनवायरनमेंट हमारा फाइनेंस का है तो फाइनेंस की जार्गन्स यूज होंगी। हमारे ऑडियंस के साथ हमारे सेंडर और रिसीवर ऑफ द मैसेज जो है उसकी जो टेक्निकल जार्गन्स हैं वो फिर यूज होंगी वर्किंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूं, रीजन कि आप देख सकें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया को मैं डिस्कस कर रहा हूं इस वक्त। सो जो स्पेशलाइज्ड फील्ड के स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के मुताबिक टेक्निकल जार्गन्स यूज करते हैं। जैसे लॉयर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जजेस के सामने जो यूज करता है लैंग्वेज, वो अपनी लीगल टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा होता है। एक फाइनेंस वाला, एक अकाउंट्स वाला अपने अकाउंटिंग और फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा होता है। एक आईटी वाला आईटी की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा होता है, वो कह रहा होता है कि इसकी नेटवर्किंग में ये मसला है, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो, इसके हार्डवेयर में ये मसला आ गया है, फाइल करप्ट हो गई है, मुझे जो है वेब 3.0 पे काम करना है, मुझे मेटावर्स पे काम करना है, मुझे ब्लॉकचेन के ऊपर ये चीज चाहिए, राइट, मुझे डेटा एनालिटिक्स के ऊपर ये चीज चाहिए, मुझे डेटा साइंसेस पे ये चीज चाहिए। व्हाट डज दिस मींस कि ये लोग आईटी वाले फिर अपनी टर्मिनोलॉजीज यूज करें। सो एवरी पर्सन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट यूज टेक्निकल जार्गन्स ऑफ हिज ओन फील्ड। सो इसका मतलब ये हुआ, यस दानिश यू आर राइट, कभी कभी जरूरत पेश आ जाती है। हाँ यस यू आर राइट, कभी कभी अपडेट करते हैं हम लोग भी। ओके ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट के रिलेशनशिप के मुताबिक हम बात करते हैं और वर्किंग एनवायरनमेंट के मुताबिक हम टेक्निकल जार्गन्स यूज करते हैं। ऑलराइट, ओके, नाउ एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने मुआशरे में देखा होगा कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। कोई मैट्रिक है, कोई इंटर है, कोई मैट्रिक पास भी नहीं है, कोई आपकी तरह से सीए है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आप कहते हैं ना, लोग बंदे बंदे को देख के बात करते हैं, हाँ, कि बंदे का लेवल क्या है, सुना होगा आपने, राइट, कहते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब उस बंदे का एजुकेशन लेवल क्या है, उसने क्या पढ़ा हुआ है, राइट। क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या वो एमबीए है, क्या वो एमकॉम है, क्या वो एसीए है, क्या वो एसीसी है, क्या वो कोई लाइक ब्यूरोक्रेट है, उसने सीएसएस किया हुआ है, या कोई मैट्रिक है, या जस्ट इंटर है। तो हर एक लेवल पे लोगों से, अपने ऑडियंस से जो बात की जाती है, ऑडियंस का प्रोफाइल, उसका लेवल ऑफ एजुकेशन देख के बात की जाती है। अगर कोई लिखा जाता है, कोई लेटर मेमो रिपोर्ट, तो आप उसके लेवल के मुताबिक लिखते हैं कि उसके एजुकेशन लेवल जो है उसके मुताबिक, ताकि उसकी समझ में आ जाए। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, होता यह है कि आपको जब तक के अपने ऑडियंस का लेवल नहीं पता, तो आप उससे कैसे बात करेंगे? आप बात करेंगे अपने हिसाब से, मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूं जनाब, मैं तो पीएचडी हूं, राइट। अब पता चला अगला जिससे बात कर रहे हैं वो मैट्रिक पास भी नहीं है। जनाब मैट्रिक वाला बंदा
पीएचडी के लेवल पे या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लेवल पे नहीं आ सकता। आपको एक पढ़े लिखे आदमी को उसके लेवल पे जाना पड़ेगा, मैट्रिक वाले के लेवल पे जाके बात करनी पड़ेगी, तब कुछ बात बनेगी, वरना दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप होगा, राइट? कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। इज दिस ओके? सो व्हाट आई वुड से कि आप जब भी किसी से बात करें, आपको जो ऑडियंस है उसकी एजुकेशन के मुताबिक आप लिखते और बोलते हैं। ऑलराइट, कोई वेल एजुकेटेड है तो उसके मुताबिक बात करते हैं, अगर कोई लेस एजुकेटेड है तो आप उसके मुताबिक बात करते हैं। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट इज एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एटीट्यूड है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब किसी का एटीट्यूड है ही नहीं बात सुनने का, या किसी का एटीट्यूड है ही नहीं है कि उसको अंडरस्टैंड कर सके, तो आप कैसे उससे बात करेंगे? तो यू हैव टू कंसिडर द रेसिपिएंट्स जनरल आउटलुक एंड इंटरेस्ट इंक्लूडिंग कल्चर एंड रिलीजन। आपको अपने सामने वाले शख्स की कल्चर, उसके रिलीजन, उसकी रवायात, उसके एटीट्यूड, उसके एप्टीट्यूड को सामने नजर रख के बात करनी होती है। अब कोई आदमी लड़के आया हुआ है, उसका एटीट्यूड से तो आपसे बात करने का है ही नहीं, वो लड़ने पे तुला हुआ है। अब आप उससे बात करेंगे, उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त उसका एटीट्यूड उस तरफ नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगले के एटीट्यूड, यानी अपने ऑडियंस के एटीट्यूड का भी ख्याल रखना होता है, और अपने ऑडियंस के एटीट्यूड के मुताबिक अपना मैसेज को कन्वे करते हैं आप। ऑलराइट, ओके। इसके अलावा उसका इंटरेस्ट भी है कि नहीं उसके अंदर, उस चीज के अंदर जिसपे आप बात कर रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा अपने ऑडियंस का। अब एक ऑडियंस है, आपको लिफ्ट नहीं करा रहा है, आप बात कर रहे हैं, वो कर रहे हूं, हाँ क्या, अच्छा, मीन्स ही इज नॉट गिविंग यू लिफ्ट, इवन आपको लिफ्ट नहीं देना चाह रहा। वो अपने मसरूफ है, अपने मोबाइल में लगा हुआ है, वो मसरूफ है अपने किसी काम में लगा हुआ है, या आपको कोई हैसियत नहीं दे रहा है। सो जनाब, हमेशा सेंडर ऑफ द मैसेज को अपने ऑडियंस के प्रोफाइल के मुताबिक, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक, उसके एप्टीट्यूड के मुताबिक बात करनी होती है, ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। राइट, अच्छा, एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे वो नहीं है सिर्फ जो आप लोग समझते हैं बात कि यार बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा है यार ये, इसका तो एटीट्यूड ही खत्म नहीं होता, हाँ, मीन्स के नखरे ही नहीं खत्म होते। यहां एटीट्यूड से मुराद ये है कि हर शख्स का डिफरेंट सिचुएशन के अंदर डिफरेंट एटीट्यूड होते हैं। कभी वो नॉर्मल हालात के अंदर है, कभी वो गुस्से में है, कभी उस पर वर्किंग प्रेशर है, ठीक है, कभी उस पर जो है वो कोई मुसीबत नाजिल हुई है, उसकी प्रायोरिटी कुछ और है, वो कहीं और लगा हुआ है, कभी उसका। सो एटीट्यूड डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होता है। ये आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि आपका एटीट्यूड डिफरेंट एनवायरमेंट के अंदर, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर मुख्तलिफ होता है। कहीं आप किसी की बात फुर्सत से बैठ के सुन रहे होते हैं, और कहीं पे आपके पास किसी के लिए टाइम ही नहीं होता सुनने के लिए। सो आपको उस सिचुएशन में देखना पड़ता है। राइट, ओके। दूसरी बात देखिए, किसी का कल्चर, किसी का रिलीजन अलग अलग हो सकता है, आपको उसका भी ख्याल करना होगा अपनी गुफ्तगू के दौरान, अपनी रिटन राइटिंग और स्पीकिंग के दौरान। देखें, हज के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 2 दफा हज के मौके दिए, 2008 में, 2016 में। बिल्कुल मैं नया नया जब जॉब पे लगा था, तो मुझे शुरू में ही अल्हम्दुलिल्लाह 2008 मुझे जो है वो मतलब मैं अच्छी थोड़ा सेट हुआ जैसे ही, तो मैंने हज किया। तो पेरेंट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, पेरेंट्स हयात थे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों, और बड़ी खुशकिस्मती थी, मेरी बचपन की ख्वाहिश थी, और मैं दुआएं करता था कि अल्लाह मुझे अपने वालिदैन के साथ हज की तौफीक अता फरमा दीजिए, और अल्लाह ने वो कबूल फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपने पेरेंट्स के साथ, मुझे अल्लाह ने हज का मौका अता फरमाया। ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है, और ये आप भी दुआ किया करें, और इस तरह से कि अल्लाह ताला वालिदैन के साथ हज अता फरमाए, इससे खुशनसीबी इससे बड़ी कोई नहीं होती। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन आई विजिटेड, मैं जब वहाँ हज के लिए मुझे अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, और जब मैं हरमैन शरीफैन गया, मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जब मैं गया, तो मेरे सामने तकरीबन कोई 35 से 40 लाख का मजमा, राइट, दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा, और उन 35 से 40 लोगों के अंदर, 35 से 40 लाख लोगों के अंदर
हर एक दुनिया के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, उनका कल्चर डिफरेंट, उनका खाना पीने का स्टाइल अलग, उनकी बातचीत का स्टाइल अलग, उनका सकाफत अलग, हर चीज अलग अलग। और मुझे वहां पे अपने एटीट्यूड को एडजस्ट करना पड़ता था उनके मुताबिक, ताकि मैं अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकूं मुख्तलिफ लोगों से। वहां मलेशियंस भी थे, तो इंडोनेशियंस भी थे, वहां मिस्री भी थे, तो वहां पे यूएई के भी थे, वहां चाइनीज भी थे, तो वहां पे जापानीज भी थे, वहां मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग थे। तो आपको जो इत्तेफाक होता है इस मल्टी कल्चर और मल्टी लिंगुअल एनवायरनमेंट के अंदर, तो वहां पे फिर आपको अपने एटीट्यूड को एडजस्ट करना पड़ता है अपने लिसनर के मुताबिक, अपने ऑडियंस के मुताबिक, वरना बात बनती नहीं है। तो जनाब सोचिए जरा कि ये एटीट्यूड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑडियंस के एटीट्यूड के मुताबिक आपको बात करनी होती है, ऑडियंस के इंटरेस्ट के मुताबिक, ऑडियंस के कल्चर के मुताबिक आपको अपने आप को मोल्ड करना होता है। यू गॉट द पॉइंट? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। सो द लास्ट स्टेप दैट वी कंसिडर इज एज। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके ऑडियंस में छोटे बच्चे भी होते हैं, आपके लिसनर्स में, आपके पढ़ने वालों में छोटे बच्चे भी हैं, दरमियानी एज के भी हैं। वो जो 7 स्टेजेस ऑफ मैन कहते हैं ना लोग, 7 स्टेजेस ऑफ मैन, कि न्यू बॉर्न बेबी से स्टार्ट होता है और ओल्ड एज तक जाता है। तो ये जो 7 स्टेजेस ऑफ एज हैं, डिफरेंट एजेस के लोग, डिफरेंट जेंडर्स के लोग आपके सामने होते हैं। आपको उनकी जेंडर, उनकी एज के मुताबिक अपने ऑडियंस से बात करनी होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे से बड़ों जैसी बात नहीं कर सकते और बड़ों से बच्चे की तरह से बात नहीं कर सकते। यू गॉट द पॉइंट? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने ऑडियंस के मुकम्मल प्रोफाइल, अपने रेसिपेंट ऑफ द मैसेज के मुकम्मल प्रोफाइल हमें अगर पता है, राइट, किसके कि उसकी कंपोजिशन क्या है, लोग कितने हैं, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी डेमोग्राफिक लेवल क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उससे आपका रिलेशनशिप क्या है, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी एज क्या है, इन तमाम चीजों को आप अपने तवज्जो के साथ जहन में रखने के बाद आप बात करते हैं अगले से, राइट। सो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, यानी कि आप कहीं पर भी आप कहें कि जहन के किसी कोने में ये चीजें मौजूद होती हैं कि मैं जिससे बात कर रहा हूं उसके मुताबिक बात करूं। ऑलराइट, इज दिस ओके? यू गॉट माय वर्ड्स एवरीबॉडी? ओके। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। यहां तक तो हमने अपने ऑडियंस के प्रोफाइल के बारे में बात की कि जब भी हम अपने ऑडियंस से रेसिपेंट को कोई लिखते हैं या उससे बात करते हैं तो हमें किन किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। ये दीज आर कॉल्ड ऑडियंस के रेसिपेंट्स का प्रोफाइल, राइट। ओके, अब हम लेते हैं सम एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स हैं यहां दी हुई। देयर आर 3 एग्जांपल्स गिवन, राइट। फर्स्ट एग्जांपल, second example, third example. There are 3 examples given here. You have 3 minutes time for 3 examples. Please go through it. इसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि आपने क्या समझा, राइट। हम देखते हैं कि आपने क्या समझा। हो सकता है मैं आपसे पूछूं भी। So you have 3 minutes time for these 3 examples. 1, 2, 3. Okay, let's start. Your time starts now. Okay, everybody has done? Say yes if it is yes. Okay, everybody done. Okay, feedback has been received. Okay. The first example regarding audience, a boss may want a business plan to be covering travel details together with the overarching strategy. Any communication to him
should not miss out on the required information, otherwise it is expected to be disapproved. Yes. अच्छा, ये जो छोटे छोटे मीनिंग्स आते हैं ना, ये काइंडली खुद देखा करें, खुद डिक्शनरी रखें, खुद गूगल करें, खुद देखें. रीजन क्या है कि छोटी छोटी सी चीजें हैं ये, इसको ना आप लोग साथ साथ देखा करें. रीजन ये है कि अगर आपका डिक्शनरी रखी हुई है साथ साथ, तो आप देखते जा रहे हैं, तो वो फिर व्हेन एवरीथिंग विल बी लाइक, इवन मीनिंग भी आपको बता रहे होंगे, तो फिर वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं लोग, फिर वो चीजें जहन में रहती नहीं है. हम बताते हैं आप लोगों को सारी चीजें वैसे, लेकिन कोशिश क्या करें कि वो साथ साथ खुद देखा करें. ओके, who would like to explain it? Here I would like to switch on the mic. कौन है जिसको समझाना चाहेगा? इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 कौन, who would like to explain? And example number 3, who would like to explain? Okay, I want that आप क्लास को इंटरैक्टिव बनाएं, मेरी क्लास को इंटरैक्टिव बनाएं, यानी कि आप भी अपनी कुछ खूबसूरत सी आवाजों में बताएं what you have understood. Yes, who would like to come forward? अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ गए, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ गए, राइट. एग्जाम्पल नंबर 2 और 1 कौन करेगा? Going for example number 3. Okay. Okay जी, example number 1, 2, 3. Yes, who would like to come forward? चले कोई सी एक एग्जाम्पल को स्टार्ट करें. In a better manner, first of all understand करें, उसके बाद no. कोई बात नहीं अगर हो गई थोड़ी सी तो. रौनक, प्लीज कम फॉरवर्ड. A nominee plans for multiple ways to interact with the voters. For elderly, he plans a social gathering. For students, he opens up a scholarship fund. And for business, he invites. जनाब, अब इसमें हमने, yes please switch on your mic. एक चेयरमैन है जो अपनी नॉमिनीज को बोल रहा है कि loud please. इधर एक चेयरमैन है जो अपने नॉमिनीज को बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाए. और उन्होंने एक एल्डरी लोग जो थोड़े से ज़ईफ लोग हैं और बूढ़े लोग हैं, उनके लिए सोशल गैदरिंग हम लोग रखेंगे जिसमें वो लोग आएंगे और इंटरेक्ट करेंगे आपस में. तो उनके लिए वो फिर अच्छा हमें रिस्पॉन्स देंगे और हमें वोट देंगे. और स्टूडेंट्स के लिए ऑनर्स जो है कर लिया, ठीक है. और इसके अलावा आपने बिजनेस वालों का कर लिया है, थ्रू हम लोग सीए कर रहे हैं. इसी तरीके से वो जो चेयरमैन होगा वो इस तरीके से अपने वो स्टूडेंट्स जो होंगे उसके वोटर उनको ऐसे समझाएगा कि इनको स्कॉलरशिप देगा, इनको स्कॉलरशिप फंड. अब्दुल्ला हैज वेरी नाइसली एक्सप्लेन कि देखिए यहाँ पे हमने वोटर्स गेन करने, हमने वोटर्स के लिए गैदरिंग करनी है. अब 3 टाइप के लोग आते हैं हमारे पास. एल्डरली आ रहे हैं, बड़ी उम्र के लोग, उनको हम सोशल प्लान्स देंगे कि जनाब आपके लिए हम बुढ़ापा लाउंज कर रहे हैं, आपके लिए हम गैदरिंग लाउंज कर रहे हैं, आपके मिल बैठने की जगह बना रहे हैं वगैरह वगैरह. फॉर स्टूडेंट्स हम स्कॉलरशिप लाउंज करने का कहेंगे, स्कूल के आपके लिए स्कॉलरशिप लाउंज कर रहे हैं, तो ठीक है, अपने वोटर्स बनाने के लिए ताकि वो हमें वोट कास्ट करें. और नंबर 3 हम बिजनेसमैन लोगों को कहेंगे कि जी हम आपके लिए आप हमें प्रपोजल दीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए इन द कंट्री, हम आपको उसके मौके भी देंगे. अब दिस इज व्हाट, ये अब एक ऐसी सिचुएशन है कि 3 डिफरेंट टाइप के ऑडियंस हैं इस एग्जांपल के अंदर. तो आप जब इनसे मुखातिब होंगे या इनके लिए लिखेंगे, राइटिंग करेंगे, तो तीनों लेवल पे हर की एज अलग है, हर एक का एटीट्यूड इंटरेस्ट अलग है, हर एक की एजुकेशन अलग है, हर एक का वर्किंग एनवायरनमेंट अलग है, हर एक की रिलेशनशिप अलग है, हर एक की एक्सपेक्टेशंस आपके साथ मुख्तलिफ है, और हर एक का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है. इसलिए आपको उन सब के मुताबिक, अपने ऑडियंस के मुताबिक राइटिंग करनी होगी. You got my words? You understood this example?
Is this clear? अब बात समझ आ गई? Everybody 100%? Okay, that's great. Okay, nice, Abdullah, appreciate it. अच्छा, who would like to come forward? कोई एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर हम नमाज का वक्फा लेंगे. That's great. रौनक said के जीरो भी काउंट नहीं हो रहे, कितना ज्यादा परसेंट समझ में आ गया रौनक खान को. चलिए, yes. Example 1 or 2, who would like to explain? Great. Yes, who would like to explain? Okay, come forward. जो भी आना चाहते हैं सामने आ जाएं. Yes. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज. सर बात है वो है मतलब अपने बिजनेस को उन्होंने अप्रूव कराना है, तो वो इसके लिए अपने मीटिंग से और बाकी सब लोगों से बात करेंगे और इस वे में बात करेंगे कि उनकी जो ये बिजनेस प्लान है वो अप्रूव्ड हो जाए और उनकी Good. कम्युनिकेशन में कोई ऐसा मिस आउट नहीं होना चाहिए कि जिससे वो जो उनका प्लान है वो डिसअप्रूव्ड हो जाए. Okay, right, 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 right. ठीक है, great. Anyone else would like to add? Nice. Okay, Fatima, Abdul Hadi, you're naughty. All right, nice comments. ठीक है. So example, like there are two students, those who have opt this. जिन्होंने हिम्मत की, they came forward. और अब जो है हम चलते हैं. अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल नीचे और है, उसको भी देखते हैं. इस एग्जांपल को भी देखते हैं. अ मैसेज वुड रिक्वायर यहां से दिस वन. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इसको भी गो थ्रू कीजिए विद इन 1 minute 2 minutes. इसको गो थ्रू कीजिए. Yes, I hope people have done, my dear students. Okay, my dear students, in this example, we have this message for a new client. और वो न्यू क्लाइंट है मिस्टर नवीद, उनके लिए मैसेज है. सेम मैसेज हम एक न्यू क्लाइंट को देते हैं. इस तरीके से मैसेज अपना डिजाइन करते हैं. हियर वी हैव द स्टाइल, हियर वी हैव द एग्जांपल के लिए, और इनफॉर्मल और फ्रैंक लैंग्वेज है फॉर द ओल्ड क्लाइंट. वेरी नाइस, वेरी नाइस, एग्जैक्टली राइट. The information you requested regarding our service, our customer service representative will be in touch with you over the week for your assistance. Thank you for choosing us as your supplier. Sincerely, Sami Babar. Right? अब ये एक फॉर्मल किस्म का मैसेज है जो आप न्यू क्लाइंट को देंगे, तो इस तरीके से आप ख्याल रखेंगे कि यार ये नया है, फर्स्ट टाइम है, हमें अपनी लैंग्वेज का ख्याल रखना होगा. आप फॉर्मल बात करेंगे, सिर्फ काम की बात, टू द पॉइंट बात करेंगे, काम की बात करेंगे. कोई फ्रैंकनेस, कोई ह्यूमर, कोई आपका चलता रहता है, बिजनेस चलता रहता है, आप आपस में फ्रैंक हैं, आपस में इनफॉर्मल हैं, तो आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी. कैसे? देखें, वहां डियर मिस्टर नवीद था, यहां इनको मिस्टर नहीं बोला आपने, डियर मिस्टर गनी, डियर गनी, डायरेक्टली. मिस्टर की जरूरत नहीं है, जनाब की जरूरत नहीं है. क्यों? इसलिए कि आप इनफॉर्मल जहां होते हैं वहां पे फिर मिस्टर नहीं लगाते. वो है ना कि आप से हम और हम से तुम और तुम से दीवाना हो गए, शायद आपने सुना हो. अब ये क्या है बेसिकली, यानी पहले हम आप कर रहे होते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम उसको तुम कहते हैं, फिर हम हो जाते हैं, और फिर हम से फिर हम जो है ना वो दीवाना हो. सो दिस इज व्हाट बेसिकली, जब हम आपस में फ्रैंक होते हैं, इवन बिजनेस के अंदर भी हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं. कैसे? देखें, अब हमने यहाँ मिस्टर नहीं कहा, राइट? पहले हमने यहाँ पे मिस्टर नहीं कहा, हमने यहाँ पे डियर गनी डायरेक्टली कहा है.
Hope you are in good health. I have just shared the information you requested earlier. I hope this will suffice for the service you are interested in. ठीक है? Sufficient का मतलब करिए आप suffice का. Please let us know when you will be available. I will send our service representative at your address who will surely take care of the installations. Right? Feel free to get back for any further queries or concerns. Take care. यहाँ देखिए sincerely, faithfully, truly नहीं है यहाँ कहना take care. Right? नीचे समी बाबर. So देखें बिगिनिंग हो या एंडिंग हो या बीच में हो, आपको यहाँ पे इनफॉर्मेलिटी नजर आ रही है, फ्रैंकनेस नजर आ रही है, क्योंकि ये आपका ओल्ड क्लाइंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैसेज में, इस एग्जांपल में ये समझाने की कोशिश की गई है कि जनाब अपने ऑडियंस के प्रोफाइल के मुताबिक आपके ऑडियंस से कितने ज्यादा आप फॉर्मल हैं या इनफॉर्मल है, उससे आपका रिलेशनशिप कैसी है, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन कैसा है, राइट, उससे आपका एटीट्यूड कैसा है, उसकी एज कैसी है, उसके मुताबिक आप उसके साथ गुफ्तगू करते हैं या लिखते हैं. राइट. सो थ्रू दीज टू एग्जांपल्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जनाब हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए व्हाइल राइटिंग और स्पीकिंग. ऑलराइट, इज दिस ओके? क्या मेरी ये एग्जांपल आपको बिल्कुल क्लियर हो गई? ओके, अच्छा, व्हाट टाइम वी हैव क्लास? ओके, सबको क्लियर हो गया 100%? बल्कि जो आंसर आ रहा है 10,000%, 1,00,000%. That's great, wonderful. That's great, wonderful. Zero भी मैं काउंट नहीं कर सकता, इतने ज्यादा. Thank you, thank you. May Allah bless you all and grant success of your choice. Jazakallah for your nice text, nice messaging, nice feedback. I'm just thankful. 1 zillion. Oh, great. 1 zillion times satisfied. Thank you, thank you, thank you. May Allah bless you. 7 stars. Great, wonderful. Thank you, thank you. May Allah bless you all. May Allah bless you. So we take a break here. A prayer break, and inshallah will write